Hello everyone, Namaskar. So in today's video, I'll show you papers from Srushti Jain Deshmukh's answer copies, what she wrote in sociology, and we'll talk about a paper one के लिए strategy into how you can improve your answers, structure कैसे किया जाए उन्हें, किस तरीके के questions आप कैसे attempt कर सकते हैं, analytical questions, application based questions जो आजकल आ जाते हैं कभी कभार, उन्हें कैसे attempt किया जाए, and ऑल ऑफ दिस विद द आइडिया कि इफ़ यू आर गिविंग मेंस 2023 कुछ ये बेसिक चीज़ें करने से आपका स्कोर जंप कर जाता है इमीजिएटली, क्योंकि बहुत बार ऐसा लगता है लोगों को कि भाई सोशोलॉजी में पता नहीं क्या करना है, कितना कुछ पढ़ना है, बट a lot of the time it is about how you are presenting the information that you already have. तो it may not be कि you have to read 10 different books या मतलब 50 जगह से रिवाइज करना है. No, what it might just be, you present the information that you already have in a structured manner and you will see your marks improving, right? So सबसे पहली चीज़ and most important, if you have not covered your syllabus so far, अगर आपका सिलेबस पेंडिंग है एंड आपने अपने सोशोलॉजी के नोट्स नहीं बनाए हैं तो प्लीज़ 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 इफ़ यू गिविंग मेंस 2023 तो डेफिनेटली गेट टू वर्क ऑन दिस. एंड इफ़ यू प्रिपेयरिंग फॉर सम फ्यूचर अटैम्प्ट 24 25 या जो भी, तो इन चीज़ों पे आपको सबसे पहले फोकस करना है कि सिलेबस कंप्लीट हो, नोट्स हर पार्ट ऑफ द सिलेबस के आपको पूरे पूरे मिल जाएं. एंड इफ़ यू वांट, माय सोशियोलॉजी नोट्स आर ऑल्सो शेयर्ड ओवर हियर upscprep.com/sociology notes. इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. तो फॉर ईच part of the syllabus you will find detailed notes with examples, but again keep in mind these are notes. इनको सिर्फ और सिर्फ इनको पढ़ के अगर आप सोच रहे हो कि हो जाएगा तो नहीं होता. whoever's notes you are reading, that is a frame of reference कि भाई इस तरीके से हमें ऑर्गेनाइज करना है, इस तरीके से हमें चीज़ें याद करनी है अपना काम आसान बनाने के लिए. तो यू कैन कपल दिस with essential sociology with by Nitin Sangwan sir. So that is also a great book for covering any part of the syllabus that is left. तो अगर सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, बेसिक से शुरू कर रहे हो, तो डेफिनेटली गेट दीज थिंग्स डन. नाउ कमिंग टू the structure of the answer, a very very simple idea, and for those of you who have studied sociology will see something very very familiar over here कि this is exactly हेगल का आइडिया जो कि मार्क्स ने टेक ओवर किया था एंड ही बॉट इनटू लाइफ विद हिज हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म. This is a similar sort of structure that we want to follow when writing an answer, right? And this is exactly what we'll discuss when we talk in terms of the paper, right? So core idea यहाँ पे हमारा क्या है कि whatever the question that we are given, whatever question we are given, we want to write a short and precise intro where we are telling the examiner in the first line itself कि yes, we have understood what the topic is all about. Then you have the first big part of your answer. This is जैसे intro body conclusion वाला GS में काफ़ी हद तक आप follow करते हैं, तो it's very similar, just body is broken down into two parts. So the first part of the body is the main argument. Whatever is asked from you, आप उससे बात करो कि भाई हाँ जी ये चीज़ें आपने पूछी थी सही हैं. But then at the same time you should also give a counter perspective, because keep in mind in sociology is not a hard science. Hard science क्या है? Something like physics, something like chemistry. वहाँ पे there are rules, यहाँ पे there are perspectives. So if you are asked a particular question, let's say कि भाई डर्कहाइम के व्यूज़ के बारे में आपसे सवाल है, तो you can contrast his views with other thinkers like Marxists, like critical theorists, right? And finally जो synthesis हमारा आता है, so synthesis और conclusion जिसको बोल देते हैं जनरली, डोंट मेक अ जेनेरिक कंक्लूजन. जेनेरिक कंक्लूजन क्या होता है कि देयरफॉर डर्कहाइम गेव द बेस्ट थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, और डर्कहाइम्स थ्योरी ऑफ रिलीजन ऑफ लेबर इज वेरी एप्ट. नो, मेक इट अ लिटिल मोर स्पेसिफिक, मेक इट अ लिटिल मोर रेलिवेंट. रेलिवेंट कैसे कि हम मॉडर्न डे एग्जाम्पल दे के या मॉडर्न थ्योरेटिकल डेवलपमेंट इसमें अगर हम बता दें तो दिस कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल, right? So let's take up an example from Srushti Deshmukh's copy and see how this can be done, right? So if we look at this question, यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ इज डर्कहाइम्स आइडिया ऑफ सेक्रेड एंड प्रोफेन, हाउ डर्कहाइम्स आइडिया ऑफ सेक्रेड एंड प्रोफेन कैन बी यूज टू अंडरस्टैंड कंटेम्प्रेरी सोसाइटी. तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है.
जो अपना 10 मार्कर शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द पेपर, उनमें से एक ये है, राइट. तो इफ़ यू लुक एट इट, इवन दो शी इज़ रिटन ह्यूज इंट्रो, almost 3/4 of a page she's written, or almost the entire page she's written the intro, but it is still fine in this particular case. Why? Because her intro covers all the important details that are required. Ki bhai, she has given Durkheim's book, primitive form of religion as totemism. She talked about ki bhai, how did he study, how did he come out with the idea of sacred and profane, एंड सेक्रेड एंड प्रोफेन का बेसिक उन्होंने एक डेफिनेशन दे दिया है, राइट. तो फर्स्ट पार्ट जो उनका था उन्होंने काफ़ी अच्छे से केटर कर लिया है. कमिंग टू इवन इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, रेलेवेंस ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स के बारे में अब यहाँ पे बात हो गई है. रिलीजियस फेयर, सिविल रिलीजन, अ न्यू सिविल रिलीजन इज राइजिंग एंड पीपल टेंड टू कल्ट ऑफ द इंडिविजुअल. तो मॉडर्न डे सोसाइटी में किस तरीके से सेक्रेड एंड प्रोफेन यहाँ पे यूज़ हो रहा है, शी हैज़ डेल्ट विद एडिक्वेटली. बट अब जैसे इनके आंसर में यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर के टर्म्स में ही बात करी जाए, कंटेंट सही है, कंटेंट इज रेलिवेंट, बट थो बिकॉज लाइक इफ यू लुक एट इट, कंक्लूजन इज कंप्लीटली मिसिंग. नाउ दिस इज ऑल्सो अ इंडिकेशन कि भाई जो टॉपर होते हैं, बिकॉज सृष्टि देशमुख, इफ वी टॉक अबाउट इट, शी स्कोर्ड आई थिंक 320 मार्क्स इन हर अटेम्प्ट इन सोशियोलॉजी, which is a very very good score to get in sociology. And even though she is missing the conclusion sometimes, it's fine. तो अगर आप हर आंसर में कंक्लूजन नहीं लिख पाते हैं, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है. even the toppers sometimes miss them, but स्ट्रक्चर अगर आप एक तरीके से करके चलोगे, जो कि इनके आंसर में यहाँ पे मिसिंग है, तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा. आपको कॉन्टेक्स्ट जनरेट करना विल बिकम मच मच ईजियर फॉर यू, राइट. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So this is a question that she has structured much better and in the way that we just talked about. तो introduction, short and sweet. Merton क्वेश्चन है, सोशल स्ट्रेन थ्योरी ऑफ मर्टन के बारे में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है. तो इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया कि भाई मर्टन कौन थे. ही वॉज अ नियो फंक्शनलिस्ट हु ट्राई टू पुट अप अ मिडिल रेंज थ्योरी. तो दो कीवर्ड्स इन्होंने यहाँ पे यूज़ करे हैं एंड दोनों को इन्होंने अंडरलाइन किया है, विच इज़ गुड, बिकॉज यू वॉन्ट टू हाईलाइट कि भैया हमने इन चीज़ों की इसमें बात करी है. नाउ अकॉर्डिंग टू मर्टन, स्ट्रेन डेवलप्स इन अ सोसाइटी व्हेन देयर इज अ कॉम्प्लेक्स डिसोनेंस. तो स्ट्रेन क्या डिफाइन किया है मर्टन ने, शी हैज़ एक्सप्लेन्ड. बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, शी हैज़ ऑल्सो गिवन अ काउंटर एग्जाम्पल. नाउ द पोजिशनिंग ऑफ दिस काउंटर एग्जाम्पल कुड हैव बिन स्लाइटली बेटर. कि अब जैसे हम बात करें क्रोनोलॉजिकली अगर, तो पहले डर्कहाइम आए थे, डर्कहाइम की बात के कॉन्ट्रास्ट में फिर और लोगों ने बात करी, एंड देन ऑब्वियसली पार्सन्स केम अराउंड एंड मर्टन्स थ्योरी डेवलप्ड अ लॉट इन एन आंसर टू व्हाट टैलकट पार्सन्स वाज डूइंग. तो अगर इस आंसर को अकॉर्डिंग टू मर्टन की वजह से मैं डर्कहाइम्स थॉट ऑफ एनोमी से शुरू करता हूँ, तो दैट इज़ अ क्रोनोलॉजिकली मोर सही आंसर. तो उसमें भी हमने क्या किया, बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया. इट इज़ जस्ट कि जो एंटी थीसिस है हमने थोड़ा सा उसको पहले दे दिया, एंड देन वी टॉक अबाउट कि भाई मर्टन का जब हमारे कल्चरली सेट गोल्स एंड स्ट्रक्चरली अवेलेबल मीन्स टू अचीव दोज गोल्स के बीच में डिस्कनेक्ट होता है, तो देन यू हैव प्रॉब्लम्स, राइट. स्ट्रेन डेवलप हो जाता है सोसाइटी में. एंड देन शी इज गॉन ऑन एंड एक्सप्लेन्ड द स्ट्रेन थ्योरी इन अ लॉट मोर डिटेल. बट अगेन यहाँ पे आप फिर से देखोगे तो even conclusion is missing, right. So here the idea is कि even though you explain the entire theory, मतलब you might get 5 marks in this answer, क्योंकि आपने एक perspective separate दिया था, आपने एक relevant intro दिया था, आपने theory को पूरा बढ़िया से explain किया है. But if you want to go for that 5.5, 6, तो then a conclusion over here which talks about the contemporary relevance of strain theory कि भाई in societies like the USA, where people want to achieve the American dream, but the means to achieve the American dream are no longer valid. So there you will see social strain, as we can see in the Black Lives Matter protests, right? Or in other problems that we are seeing in the American society. So this becomes a very, very contextually relevant answer, क्योंकि हमने स्ट्रेन थ्योरी का प्रेजेंट रेलेवेंस भी बता दिया, हमने स्ट्रेन थ्योरी भी पूरी समझा दी, एंड एट द सेम टाइम हमने एक काउंटर एग्जाम्पल भी, जो यहाँ पे इन्होंने डर्कहाइम के थॉट को कॉन्ट्रास्ट करके बताया था कि भाई डर्कहाइम कहते थे दैट एनोमी और
द क्या बोलते हैं इक्वलेंट कॉन्सेप्ट एज स्ट्रेन वॉज अ पैथोलॉजिकल स्टेट अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम, मीनिंग बीमारी है ये जो ठीक हो जाएगी तो देन इट विल बी अ परफेक्ट सोसाइटी. बट Merton says that no, strain is a part of society. So this is a very good answer for sociology, and this is something that you should try and replicate in your answers. So coming back to this idea, अगर आप अपने आंसर में एक पर्सपेक्टिव एंड एक काउंटर पर्सपेक्टिव दे सकते हो. अब पर्सपेक्टिव सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा स्पेस वो लेगा जो कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है, राइट? लाइक वी सॉ इन सृष्टि देशमुख's कॉपी, शी हैड गिवन a full page to explaining the strain theory of Merton, and Durkheim, which was the antithesis or the counter perspective, was just 2 or 3 4 lines. इतना ही चाहिए, इससे हमारा काम बढ़िया हो जाता है. इट सीम्स टू द एग्जामिनर कि भाई yes, the person who is writing this paper is a student of sociology and not somebody who has just ratified the syllabus and come and regurgitated it here. Because see, GS का पेपर आपका जो है दैट इज अ जनरलिस्ट इज चेकिंग दैट पेपर, अ स्पेशलिस्ट इज नॉट. बट सोशियोलॉजी का जो पेपर है, यू कैन बी अश्योर्ड दैट द पर्सन चेकिंग दैट पेपर इज समबडी हु इज एन एक्सपर्ट इन सोशियोलॉजी. एंड इफ यू राइट इन अ वे दैट दे आर यूज्ड टू, then it will be easier for you to score more marks. And this is something that is very very comfortable for sociology examiners to see. How do I know this? Why do I know this? Because in my attempts over time, I've talked to like a lot of sociology professors, and some of them had also been people who were evaluating papers for UPSC. But obviously, they would not be completely comfortable कि भाई आके बात करके वो खुद ही बता दें, क्योंकि that is something that is they can't do. But in private, sometimes you can get this sort of an information कि भाई जिस तरीके से हमें आंसर पढ़ने की आदत है, आप वैसे आंसर लिखो, you will get better marks. Now, coming to comparison वाले questions, this is another type of question that is frequently seen in sociology का papers, which is कि भाई जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा, and this is I think a PYQ, that division of labor का जो theory है, compare Marx and Durkheim. Right, so both of them have talked about division of labor, and you are asked to compare कि भैया इन दोनों की theories में क्या similarities, क्या differences है. तो if you are comparing, again think like a sociologist, and when you're thinking like a sociologist, this is what you do. कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जब आप कंपैरिजन कर रहे हो तो इंट्रोडक्शन में ही आप बहुत सिंपल सी एक चीज़ बता सकते हो कि भाई डिवीजन ऑफ लेबर को डर्कहाइम स्टडीड इट फ्रॉम अ फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव एंड मार्क्स स्टडीड इट फ्रॉम अ कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव. सिंपल इनफ, बट मेक्स इट एब्सोल्युटली क्लियर कि भैया आंसर किस डायरेक्शन में जाने वाला है. देन यू कैन टॉक अबाउट द मेथोडोलॉजी दैट द टू ऑफ देम फॉलोड, कि डर्कहाइम की मेथोडोलॉजी क्या थी, मार्क्स की क्या थी. देन यू कैन मेंशन देयर स्टडीज़, कि जैसे अब सृष्टि देशमुख की कॉपी में हमने देखा था दैट शी मेंशन दैट स्पेसिफिक बुक ऑफ डर्कहाइम. इफ़ यू डोंट रिमेंबर दैट इज़ फाइन, बट इफ़ यू कैन, क्योंकि देखो जो 6 बेसिक हमारे थिंकर्स हैं उनकी बेसिक किताबें अगर आप मतलब याद करके जाते हो तो दैट गिव्स अ वेरी वेरी गुड इंप्रेशन. एंड देन फाइनली आप कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करो नॉट जस्ट मार्क्स एंड डर्कहाइम बट ऑल्सो विद अदर्स थोड़ा सा इन सच क्वेश्चंस, विच मेक्स योर लाइफ ऑल द मोर ईजियर, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ इनके पर्सपेक्टिव पे तक नहीं रहे, आपने और चीज़ों को भी इंक्लूड करने की यहाँ पे कोशिश करी, which will get you that extra 0.5 or 1 mark, right? तो देखो इन दी एंड लड़ाई सारी वो आधे नंबर की ही है. कहीं ना कहीं आपको बस वो आधा नंबर एक्स्ट्रा लाना है हर आंसर में, एंड दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस. बट दैट इज़ द हार्ड पार्ट टू डू, which is something I think we recently discussed in a comment also, where somebody was like कि भाई गरिमा लोहिया is not an IAS material, इसको बस आधा नंबर फालतू मिल गया हर आंसर में. भैया वो आधा नंबर फालतू लाने में आंसर में ना ज़बरदस्त मेहनत लग जाती है, विच इज़ वॉट दिस ऑल वीडियो इज अबाउट, कि भाई इस तरीके से चीज़ें करोगे तो यू हैव द चांस टू गेट दैट एक्स्ट्रा 0.5 मार्क्स. नाउ रिसेंटली देर हैज़ ऑल्सो बीन अ ट्रेंड ऑफ कि एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कि भाई आपसे डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ें पूछ ली गई हैं. कि वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई पर्सनली रोट व्हेन आई वाज गिविंग मेंस वाज कि मर्टन की थ्योरी ऑफ डिविएंस, हाउ कैन यू यूज इट टू अंडरस्टैंड द ट्रैफिक प्रॉब्लम इन इंडिया. सो दिस इज एन एनालिटिकल एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. तो अगर इस क्वेश्चन में जैसे कि ये तो बहुत ही डायरेक्ट है, आपको मतलब बहुत ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने का स्कोप नहीं है, क्योंकि मर्टन की थ्योरी पूछी है और उसका एप्लीकेशन पूछा है, तो आपको थ्योरी उठाओ. थ्योरी में जैसे आपका इनोवेटर्स होते हैं, कन्फॉर्मिस्ट्स होते हैं, रेबल्स होते हैं, एंड ये सारों को आप ट्रैफिक के संदर्भ में प्रेजेंट कीजिए. बट
इफ़ यू गेट सम जनरल क्वेश्चन, यू नो, जैसे पेपर 2 में जनरली यू गेट अ लॉट ऑफ मोर ऑफ दीज क्वेश्चन, बट इवन इन पेपर 1 यू कैन गेट देम. Like you will be asked to analyze MG Narega or the problem of poverty. So in such a case, a very simple framework that you can adopt is this. मुझे कुछ दिमाग नहीं लगाना है. I can just take the help of thinkers. कि what have various thinkers said about poverty? What has Durkheim said? What has Weber said? What has Marx said? Now you may not have read directly them talking about poverty, but you have heard Marx talk a lot about the bourgeois and the proletariat. तो where do you think poverty lies? तो इस तरीके से जब आप एनालाइज करना शुरू करोगे, आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा. दिस इज अ वेरी सिंपल फ्रेमवर्क दैट यू कैन यूज. द सेकेंड टाइप ऑफ फ्रेमवर्क दैट यू कैन यूज इन सच अ सिचुएशन इज इंस्टीट्यूशंस. कि पॉवर्टी में हमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना. हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे कि भाई हाउ डज पॉवर्टी इम्पैक्ट द फैमिली, हाउ डज पॉवर्टी इम्पैक्ट रिलीजन, हाउ डज पॉवर्टी इम्पैक्ट इकोनॉमिक रिलेशंस. एंड जो सिलेबस के सब टॉपिक्स हैं, राइट, बिकॉज दीज आर ऑल सिलेबस का टॉपिक्स. पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम, किनशिप, स्ट्रैटिफिकेशन एंड चेंज. मेरे को बस इन चीज़ों के हिसाब से चलना है. एंड इनसे रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में पॉवर्टी के संदर्भ में मैं बात कर सकता हूँ. अब ये भी मुझे अगर नहीं आ रहा उस मोमेंट पे, तो व्हाट आई कैन ऑल्सो डू इज simply talk about perspectives. कि what do the functionalists say about poverty? For example, the functionalist argument for poverty is कि a certain amount of inequality in the system is good because it fosters competition, and competition ensures that जो डेविस एंड मोर की हमारी theory थी that the right people are allocated the right jobs. That's what the functionalists say. But conflict perspective सही अब यहीं पे ये बोलेगा कि भाई नहीं, दिस इज़ वॉट द रूलिंग क्लास वुड वॉन्ट यू टू बिलीव कि भैया हाँ गरीब रहोगे तभी समाज प्रगति करेगा. ज़रूरी नहीं है. ये आपको एक आइडियोलॉजिकल मतलब नकाब पहनाया गया है सो दैट you agree to the hegemony of the ruled, right? This is what the argument of Antonio Gramsci was. So इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हमने पर्सपेक्टिव्स दे दिए. इवन इफ आई डोंट रिमेंबर पर्टिकुलर थिंकर्स के नाम, मेरे को ग्राम्सकी याद नहीं है, मुझे डेविस एंड मोर अगर याद नहीं है, बट फंक्शनलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स तो आई कैन जनरली टॉक अबाउट, राइट. सिमिलरली कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के आर्ग्यूमेंट्स आई कैन जनरली टॉक अबाउट. feminist perspective के arguments I can generally talk about, right? So these are things that will help you improve the sociological feel of your answer. कि आपको अपना आंसर ऐसा दर्शाना है कि आप एक स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी हो, क्योंकि आप वही शब्द इस्तेमाल कर रहे हो जो कि एक एक्चुअल पर्सन हु स्टडिंग सोशियोलॉजी इन कॉलेज विल बी यूजिंग. एंड इफ यू कैन डू दैट, I can assure you your marks will improve from where they are at the moment. Now, there are some misconceptions that I'd also like to address in this video over here. Number one is कि भाई बहुत लोगों को लगता है पेपर 1 and 2 को सेपरेट हमें रखना है. ये कुछ कारण से इसलिए भी आता है because in a lot of institutes where sociology is taught, paper 1 and 2 are dealt with separately. But please keep in mind that if you can give me an example of M.N. Srinivas in paper 1 and Durkheim in paper 2, दोनों सोशियोलॉजी के ही एग्जाम्पल हैं, एंड इट इज़ वेरी गुड इफ़ यू कैन डू दैट. सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि ये जो आइडिया है दैट दीज आर टू सेपरेट थिंग्स, दे आर नॉट. दे आर एब्सोल्युटली नॉट. तो use examples that you have learned in context of paper 2. If you want to use Andre Bataille in paper 1, use it. If you want to use Weber in paper 2, use him. सेकेंड इज ऑप्शनल एंड जीएस के पेपर्स को लोग सिमिलरली ट्रीट करते हैं कि भाई ऑप्शनल में भी पीपल स्टार्ट राइटिंग कि भाई पॉइंट 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 एंड फिर 4 पॉइंट 8 पॉइंट 10 पॉइंट करके और आंसर खत्म करके चले जाते हैं. नो, पर्टिकुलरली इन सोशल साइंस वाले जो ऑप्शनल्स आपके रहते हैं, यहाँ पे अगर आप काउंटर पर्सपेक्टिव्स दे सकते हो, अगर आप एक आर्ग्यूमेंट दे सकते हो मुझे, इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग मी 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट, that is much better. Just like we saw in Srushti Deshmukh's copy, it was all in paragraphs. If you see her GS copies, she writes in a lot of points. So optional and GS are not the same. You have to keep that in mind and treat them differently. But at the same time, they are also not completely different. What does that mean? कि
अब कुछ लोगों के दिमाग में ये बैठ जाता है कि भाई ऑप्शनल है तो इसमें बस आर्गुमेंट ही देनी है और सिर्फ उसी तरीके से हमें बात करनी है। नहीं, ऑप्शनल में भी आप डायग्राम्स बना सकते हो, आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हो, आप बहुत नए तरीके से अपने आंसर्स को प्रेजेंट कर सकते हो। लाइक अ वेरी सिंपल एग्जांपल इज़ कि जब हम हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात कर रहे हैं तो this triangle can be used to represent, right, the class of haves on the top, the small triangle, and the have nots. If you are still talking about something like the middle class, तो middle class को ऐसे दिखा सकते हो कि भैया यहाँ से कुछ most of the people will fall down into the proletariat and some of them will also join the bourgeoisie, but the upper going percentage will be much lower, the lower falling percentage will be much higher, and this is called the process of pauperization, right? So you might have studied then that when you were studying Marx. तो they're also not completely different in that कि भी diagrams अगर आप इस तरीके से अपने sociology के answers में use करेंगे तो it will be useful, it will be helpful, and it will make your life easier because the examiner finds it easy to understand what you have written, right? Which brings me to the sociology ka test series. So we will be starting a sociology test series where the first test will be from 26th of June. So if you're interested, there are two variants, 8 tests and 12 tests. And if you're giving mains this year, so I would highly recommend you join a test series. अपने आंसर्स लिखो, दिखाओ एंड इम्प्रूव ऑन देम राइट नाउ, क्योंकि अगस्त में जाके अगर आप वेट कर रहे हो कि देन आई स्टार्ट राइटिंग, तो दैट विल बी टू लेट, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू इम्प्रूव। ये टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करनी, कोई और करनी है कोई और करो, बट टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कर लेना। एंड courses.upscprep.com पे यू कैन चेक आउट द डिटेल्स फॉर दिस टेस्ट सीरीज। एंड बेसिक अगर हम बात करें तो वी विल ऑल्सो बी प्रोवाइडिंग यू अ लॉट ऑफ मॉडल फ्रेमवर्क्स फॉर ईच टेस्ट विच विल हेल्प यू develop better understanding of the concepts and give you more examples to enrich your content। कि thinkers वगैरह आपको दिमाग बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम काफ़ी सारे आपको इन मॉडल फ्रेमवर्क्स में दे देंगे। एंड सो टेस्ट इवेल्युएशन विल बी बाय एन एक्सपर्ट टीम, ऑल टेस्ट विल बी इवेल्युएटेड विद इन 10 days। तो विद इन 10 days वी आर सेइंग इज द मैक्स लिमिट। most of the time we'll try to get them done within 7 days, but max to max within 10 days will be, you will get your answer copies submitted, right? After the tests you can also discuss any problems that you're facing with a mentor, एंड आंसर राइटिंग के जो सेशंस हमारे थोड़े रहेंगे इसमें और डिटेल में हम बात करेंगे कि व्हाट मेक्स फॉर अ गुड आंसर इन सोशियोलॉजी, स्ट्रक्चर कैसे इंप्रूव करें विद स्पेसिफिक एग्जांपल्स। एंड नॉट जस्ट दैट, डाउट्स डे का जो हमारा एक्सेस रहता है उसमें एवरी अदर सैटरडे 6 PM पे यू कैन ज्वाइन फॉर सोशियोलॉजी डाउट्स, 6 PM ऑन फर्स्ट एंड थर्ड सैटरडे, राइट? तो इसका एक्सेस आपको रहेगा टिल नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स। तो इफ़ यू गिविंग मेंस तो फिर प्रॉब्ली यू वोंट नीड इट, बट इफ़ यू प्रिपेयरिंग फॉर 2024 एंड सोशियोलॉजी आपका ऑप्शनल है, आप चाहते हैं कि भाई यू नो आपको कॉन्स्टेंटली इवन आफ्टर कंप्लीटिंग द टेस्ट सीरीज कोई दिक्कत रह रही है, कुछ और डिस्कस करना चाहते हो, तो डाउट्स देगा एक्सेस आपको टिल प्रीलिम्स रहेगा। यू कैन ज्वाइन एनी टाइम एंड यू नो ask your doubts with a mentor. So there are two types of this test series. There's the 8 tests where 4 sectional and 4 full length tests, and there'll be 12 tests which are 4 sectional and 8 full length tests. तो इनका शेड्यूल और ये जो ब्रोशर है, दिस विल ऑल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट courses.upscprep.com. You can check it out in the video description below. And that's it for today's video. Thank you all for watching. Best of luck on your UPSC journey.